हेलो स्टूडेंट्स। फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आने का बहुत बहुत स्वागत। पिछले वाली वीडियो में थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो गया था। वीडियो में बहुत सारे ऐसे एरर आते रहते हैं। मेरे जो स्टोरेज है वो पहले से ही फुल हो गया था और नोटिफिकेशन आ गया, जिसकी वजह से मुझे रोकना पड़ा बीच में। तो अभी पूरी कोशिश है, एंड तक बने रहिए। कोई क्लिक बैट नहीं है, बट टेक्निकल एरर, क्योंकि आपको पता ही मोबाइल से बना रहा हूँ, थोड़ा मोबाइल का स्टोरेज कम है, बट कोशिश पूरी है कि आए हैं तो पूरा का पूरा वर्क देके जाएंगे। नो बकवास, सीधा काम। चलिए 41 42 का फटाफट बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट बोलते जाओ फटाफट। Write about the the remedies write about the remedies of soil conservation. soil conservation. Write about the remedies of soil conservation. Second. Conservation. Okay. Second. Desert soil Desert soil is less fertile. Give reason. Less fertile. Give reason. Okay. Next. What is soil erosion? What is soil erosion? Question mark. Question mark. State the measure to prevent it. Measures. अच्छा, state the measures to prevent it. Okay. Fourth. Next. Where are the sugarcane factories located? Question नहीं, mark. रुको। Where are the sugarcane factories Located. Question mark. Why? Question mark. खाली इतने क्वेश्चन है। Where are the sugarcane factories located? Why? क्यों? अच्छा, Fifth. geographical question. Okay, next. Write a note on Write a note on alluvial soil. alluvial soil. Spelling सही है? Yes, sir. Next. Write notes on black soil. रुक जा। Write notes on black soil. Okay, next. Explain the following terms. Explain the Following terms. Solitary resources. Solitary Resources. Individual resources. And third, global resources. and third is nothing but global resources. Okay, Yes, sir. फ्रेम से बाहर तो नहीं हो? No, sir. ठीक, इसको लिख लीजिए फटाफट। 2 सेकंड का पॉज है, एकदम फास्ट लिखते चलेंगे। आप तो इसको रोक के भी लिख सकते हैं, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? What is called as mountain soil? What is called as mountain soil. Okay, next. Write a short note. Write short note on Desert soil. desert soil. Desert soil तो आगे आ चुका था ना? Yes, sir. रिपीट नहीं हो रहा है। चलो, No, क्वेश्चन sir. नंबर 10। Explain the terms. Explain the terms. First, that is universal resources. universal resources. Second, renewable. And second is Renewable resources. renewable resources. Third is non-renewable resources. Third is non-renewable. Okay. Next, meaning of soil conservation. Meaning of soil conservation. Question mark. Meaning of soil conservation. Question mark. Question mark. State the remedies.
State the remedies remedies of soil conservation. ये आगे आ चुका था क्या? No sir. स्टेट द रेमेडीज ऑफ Soil conservation. अरे यार पहला ना क्वेश्चन ही शायद यही था, देखो तो पहला क्वेश्चन। Yes sir, लेकिन इसमें मीनिंग भी पूछे soil का. अच्छा अच्छा, सॉइल का मीनिंग नहीं था उसमें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी। State the remedies स्टेट द रेमेडीज to prevent सॉरी रेमेडीज to prevent टू प्रिवेंट soil erosion. सॉइल इरोजन। ओके नेक्स्ट, Explain the following terms. एक्सप्लेन द Following terms. फॉलोइंग टर्म्स। Rare resources. अच्छा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स है ना। Yes sir. रेयर Resources. रिसोर्सेज And second, red soil. and second one is Red soil. red soil. Okay, next क्वेश्चन नंबर 30 लिख लीजिए, 2 सेकंड का पॉज। ओके, आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं, मेरे को आगे बढ़ना है इसलिए मैं रफ कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड फ्रेम में है ना। Yes sir. Yes sir. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, Write a note on राइट ए नोट ऑन regular soil, रेगुलर सॉइल। meshy and peaty soil. पहला किस पे लिखना है? राइट ए नोट ऑन रेगुलर सॉइल, पहला। पहला ही है regular soil. अच्छा, पहला रेगुलर सॉइल है Yes sir. और सेकंड वन Messy and peaty soil. मेर्सी के MARS soil मर्सी सॉइल। ओके नेक्स्ट, and peaty soil. पीटी सॉइल, PATY सॉइल ना। Sir, messy और peaty soil है. अच्छा, दोनों में इसको एक हाँ. मर्सी और Peaty soil. PATY Soil. सॉइल। स्पेलिंग सही है, देख लेना। सही है। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 15 What is resources? है, What is resources? व्हाट इज रिसोर्सेज? Question mark. व्हाट इज रिसोर्सेज? Question mark. हाँ, Describe its uses. describe its uses. Okay, next, Conservation of resources. conservation of resources. Yes sir. हाँ? Yes sir. Okay, next, Laterite soil. laterite. soil. ये स्पेलिंग सही है ना? laterite. laterite से कुछ करके है, Yes sir. स्पेलिंग सही है। Yes sir. laterite soil बोलते हैं इसको। next, How बस कितना how है? how many types of land? how many Types of land types of lands exist in India? exist in India? Question mark. In India, question mark, Describe each type. describe Each type. each type. Yes sir. Okay, next, Okay. हो गया क्वेश्चन नंबर 41 42 कंप्लीट। Yes sir. चैप्टर 8। ओके, 2 सेकंड का पॉज, आप लिख लीजिए इसको। ओके नेक्स्ट, Question number 43. वेट Chapter number 16 से है. भाई, टाइम लिमिट देखते जाना। ठीक चल रहा है हम लोग, टाइम पे है हम लोग। Yes sir. ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 ना। Yes sir. कितने क्वेश्चन टोटल? Total है 6. 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 43 कौन से चैप्टर से है? 16। बोलो बोलो बोलो। Which steps have been taken to conserve environment? Okay, next, Write a note on globalization. Okay, Advantages and disadvantages. एडवांटेज में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ADV एंड डिसएडवांटेज में लिखूंगा DISADV। ओके, Yes sir. चलिए शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट, World Trade Organization. WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट,
sustainable development, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होता है मतलब कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं और हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए किस तरह की सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों डेवलपमेंट को हमको एक्सप्लेन करना रहता है और उसमें हम सस्टेन कर पा रहे हैं कि नहीं, हम उसमें सर्वाइव कर पा रहे हैं कि नहीं उस डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, economic development, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी पैसे से हम डेवलपमेंट हो रहे हैं कि नहीं, आर्थिक तंगी तो नहीं है। नेक्स्ट privatization, प्राइवेटाइजेशन। ओके, सीधा क्वेश्चन का टॉपिक है, मेन टॉपिक, ठीक है। जैसे प्राइवेटाइजेशन इस चैप्टर में जाओगे, जो टॉपिक है उसके कंटेंट को पढ़ो, समझो, 10 से 12 पॉइंट लिखने हैं, मैक्स टू मैक्स 10 पॉइंट, मैक्स यानी मैक्सिमम 9 पॉइंट, मिनिमम। जो अल्ट्रा लेजेंड जो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं वो 12 पॉइंट लिख लो। किसके लिए? अल्ट्रा लेजेंड, ठीक है, ये आम बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया। Yes. क्वेश्चन नंबर 42, 2 सेकंड का पॉज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 44 and 45, ओके, कितने क्वेश्चन है? इसमें 8, और क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45, चैप्टर बोलो 18, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लोगो पहचानना है, आइडेंटिटी लोगो। वो लोगो में आपको मैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे फॉर एग्जांपल ISI है, हैपेक होगा, गैस HACCP ऐसे करके होगा, फिर BIS होगा, तो वो एक्सेट्रा हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द रीजन ऑफ प्राइस राइज, अच्छा, रीजन फॉर प्राइस राइज यानी जो महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में, ओके। नेक्स्ट थर्ड भी लोगो है, ISO ISI इको, इसी में लिख दो ना, ISO इको MPO। चलो आगे। नेक्स्ट फिर है फोर्थ वुमेन डिस्क्रिमिनेटेड, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, यानी नारी को अपनी पहचान, उनकी पहचान किस तरह की मतलब होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सरकारी नौकरी है, वहाँ पे ह्यूमन मान लो मेल से ऊपर पोस्ट पे है, तो बहुत सारी चीजें, या चाहे नीचे पोस्ट पे, तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव। चलो नेक्स्ट, कंज्यूमर कोर्ट प्रोटेक्शन, यही है ना? यस सर। नेक्स्ट, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट 7 है ब्लैक सॉइल, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म, बोलो, ब्लैक मार्केटिंग, एक्सप्लेन द टर्म्स। हाँ बोलो, पहला ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग, फिर दूसरा है स्मगलिंग, एंड थर्ड है होर्डिंग, तीसरा है होर्डिंग। यस सर, होर्डिंग समझते हो? नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हो गया सर, बस इतना ही है? यस सर। चलो नेक्स्ट, 2 सेकंड का पॉज, लिख डाल। ठीक, हम अपने एंड तक पहुंच गए हैं। अभी कौन सा नंबर क्वेश्चन है? अभी 46 लास्ट। कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल? 6। ठीक है, चलिए अभी सबका इंतजार खत्म, अब 9 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यस सर, बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 46, हाँ बोलिए। चैप्टर 19, गुड आदित्य गुप्ता, गुड। जागो और पढ़ो, फेल नहीं हो सकते, फेल हो गए तो हलक में हाथ डाल के पेपरा खींच लूंगा। मूवी का डायलॉग, मेरा डायलॉग नहीं है। किस मूवी का डायलॉग है? सनी देओल का मूवी एक है घातक, ठीक है। घातक या घायल, दोनों में से कोई एक है। घातक ये जिसमें वो अमरीश पुरी रहते हैं, उसके 7 भाई रहते हैं,
उनको मारता हूँ, तू भी मारना तो जाता है, ठीक है। और वो मेरा फेवरेट डायलॉग है, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। वो मैं हमेशा स्टेटस लगाता हूँ जब मेरा मूड खराब रहता है, ठीक है। चलिए बोलो बोलो बोलो, पहला नंबर। What is terrorism? अरे बाप रे अभी मैं वो डिस्कस कर सीधा वो क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज टेररिज्म। ओह माय गॉड। Question mark. ओके, Right or not on हाँ बोलो ना भाई, राइट ए नॉट ऑन। terrorism in Kashmir? अरे बाप रे बाप, राइट ए नॉट ऑन Terrorism in Kashmir. टेररिज्म। स्पेलिंग चेक करते चलना बाबू, जे एंड के लिख दो तो नहीं चलेगा, चलेगा। कश्मीर लिखना ही रहेगा, लिख दो सर। बट अभी टेररिज्म नहीं है वहां पे। अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, Welfare scheme. वेलफेयर स्कीम किसके लिए, मेन या वुमेन? Women. ओके, स्पेलिंग देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 3, अभियान योजना. ओहो, अभियान योजना। चलो नेक्स्ट, स्पेलिंग देखते रहना। Human Development Index. ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। Fifth. Government of Gujarat. गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, Gender equality. गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, और इसके अंदर लिखेंगे जेंडर ऑफ इक्वलिटी। ओके, And last one. लास्ट वन, Improve health care इम्प्रूव हेल्थ केयर, in India. हेल्थ केयर इन इंडिया। सर अब सरप्राइज का टाइम. ओके, इम्प्रूव हेल्थ केयर इन इंडिया, सही लिखा हूँ? यस सर. हो गया, Yes, sir. टोटल 46 नंबर क्वेश्चन हो गए। Yes. चलिए अभी बोलना नहीं है, मैं लिखूंगा, सीधा बोलूंगा कौन कौन से हैं, और मैं कैसे बोलूंगा वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। ठीक, चलिए अभी जो हमने पूरी तैयारी की है उस तैयारी में ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 38 39 में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी टीम ने, हमारे टीचर्स ने मिलके किया है, हमारे कोचिंग के टीचर्स ने मिलके किया है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमारे आसपास में और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियो को थोड़ा सा आप शेयर कीजिए। और हमारी जो कोचिंग है स्टडी पॉइंट, स्टडी सेंटर, और खासकर जो स्टडी पॉइंट है उसमें आप ज्वाइन होइए। अच्छे से अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं हमारे पास, और जितना हो सकेगा आपको पूरे के पूरे डाउट सॉल्यूशंस और आपके करियर गाइडेंस प्लस आपको स्किल डेवलपमेंट, चाहे सॉफ्ट स्किल हो, चाहे हार्ड स्किल हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल हो, उसके लिए हमने एक टीचर्स हायर किए हैं जो आपको गाइडेंस देंगे। तो ज्वाइन कीजिए स्टडी पॉइंट और हमारे टीचर से पढ़ने का मौका पाइए, ठीक है। और ज़्यादा कुछ ना कहूँगा, थोड़ा सा आपको बता दूँ, उसके बाद थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 39 के लिए, उसमें मैं 2 क्वेश्चन बताना चाहूँगा। सबसे पहला, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन धोलावीरा। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन धोलावीरा, ठीक। नेक्स्ट है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। 2 क्वेश्चन हो गए 38 39 के लिए, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन धोलावीरा। ओके, नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन नंबर 38 39 हो गया। अब इसके बाद क्या था, 40 के लिए सबसे 3 जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट उसमें एनी वाले में अगर आते हैं तो आप उसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, कोई भी एक जो पोजीशन पे आएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। इसमें से 3 मैं बताना चाहूँगा, तो तीनों 1 के बराबर है, इतना याद रखिएगा। वो डिवाइड करके भी दे सकता है। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ नालंदा विद्यापीठ, ओके, एज वेल एज तक्षशिला विद्यापीठ, या कंपैरिजन, दोनों में एक ही क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, जिसमें नालंदा विद्यापीठ, तक्षशिला विद्यापीठ एंड एक और था इंडियन लिटरेचर, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जब एंशिएंट इंडियन लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो उसी इंडियन लिटरेचर के
कॉन्सेप्ट में आपको हर एक वेदा के हर एक कॉन्सेप्ट को याद होना चाहिए, 2-2 3-3 पॉइंट याद होने चाहिए जो 2 मार्क्स में आपको कवर अप करेंगे। ठीक, और ये हो गए टोटल 3 क्वेश्चन, उधर 2, टोटल 5। फिर क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, क्वेश्चन नंबर 41 42 के लिए आपको 2 क्वेश्चन देना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहले टॉप पे क्वेश्चन जो है हमने जो सेलेक्ट किए हैं, सॉइल कंजर्वेशन एंड द रेमेडीज, यानी उसको जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास, उसके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं बचाने के लिए, और उसकी क्या क्या खासियत हो सकती है जो हम उसको अप्लाई करें तो सॉइल कंजर्वेशन हमारा हो सकता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि डेजर्ट सॉइल पे शॉर्ट नोट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और जो सॉइल कंजर्वेशन मैंने बताया है उसमें मीनिंग ऑफ सॉइल कंजर्वेशन भी साथ में पूछ सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखवाया था आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये सिर्फ 9 मैं अपने हिसाब से, हमारी टीम ने जो डिसाइड किया, जो सेलेक्ट किया उसके हिसाब से, बाकी तो मैंने आपको सब ऑलरेडी लिखा ही दिया है। जो पूरा पढ़ना चाहते हैं वो पूरा पढ़ें, जिन्हें लगता है कि शॉर्टकट मारना है वो शॉर्टकट मार लें, बट गारंटी नहीं लेंगे, क्योंकि गारंटी तो जिंदगी की भी नहीं है। आज है, अभी पल भर में यहाँ से हटा के खेल खत्म, यहाँ पे भी खेल खत्म हो सकता है, तो गारंटी नहीं लेंगे। बट जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उस क्वेश्चन में इतनी तो क्लैरिटी होगी कि 50% 60% क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। हम गारंटी नहीं लेंगे, बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि 100% आएगा, बट अब जो दिखता है वो बिकता है। तो आप समझ सकते हैं, हमारा थंबनेल भी अगर 100% का हमारे एडिटर ने किया है, लेकिन मैं अपने तरफ से कहता हूं, क्योंकि जो है मुंह पे है, मेरे को पीठ पीछे बोलने की आदत नहीं है। जितना भी फंसेगा 60 से 70% ही फंसेगा। ठीक है, पूरा 100% नहीं। अगर फंस गया तो और अच्छी बात, क्रेडिट लेंगे, नहीं फंसा तो भी क्रेडिट लेंगे, हाँ भाई हमने मेहनत किया, बताया, बट नहीं फंस पाए, अगली बार और मेहनत करेंगे। ठीक है, मेहनत करने के लिए हमेशा रेडी है। आप हमेशा, आपने देखा होगा, जब भी मेरी कोई गलती होगी या मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है तो भी मैं एक ही वर्ड यूज करता रहूंगा, हम सीखेंगे और सीखते रहेंगे। ठीक है, चलिए अभी 41 42 हो गया, अभी कौन सा बचा 43 में बस एक ही मैं बताना चाहूंगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आएगा आएगा आएगा, ये दोनों में से कोई एक। ठीक है, अब 44 45 में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, बट फिर भी मैं इसको और में रखना चाहूंगा। एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक, और दूसरा है ये लोगो वाला। ठीक है ना, लोगो पिछले साल के पेपर को भी स्टडी किया, लोगो देता है तो आपको लोगो पहचानने आना चाहिए। ठीक है, लोगो का नाम क्या है उसके बारे में आप कुछ 2-3 पॉइंट्स पता होने चाहिए, आपको कुछ आइडिया होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है 46 के लिए, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसका और में यानी इंडियन गवर्नमेंट ने वुमेन के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं उसके बारे में। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस आप जोड़ेंगे तो लगभग 10 भी हो सकता है, ह्यूमन है, एरर होगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम पूरी अपनी जी जान लगा दें आपके बोर्ड्स के लिए। अभी तो सिर्फ ये एसएस है, मेरी टीम बोल रही है कि सर हम एक पूरा एक सीरीज लेके आते हैं 10th क्लास का, और मैं बोला भाई मैं 12th पे काम करने के लिए आया हूँ, आप मुझसे 10th का काम करवा रहे हो। लेकिन टीम का कहना है कि सर जो ट्रेंड है, जो चल रहा है उसको फॉलो कीजिए, और 12th का भी मैंने तो पहले से बोल के रखा है कि उसका थोड़ा और नज़दीक आया तो मैं MCQ और जो उसका पेपर है 2024 का री एग्जाम का, 2024 का मेन का, वो मैं सॉल्व कराऊंगा ऐसे ही, इतने ही स्पीड में। बट हो सकता है वो वीडियो 4-5 भाग में हो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज की सुविधा नहीं। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि वहाँ पे आपको 60 मिनट्स में वो क्वेश्चंस करने रहते हैं 12th साइंस फिजिक्स के, MCQ 50, तो मैं उसको ऐसे डिवाइड करूंगा कि मेरे वो वीडियो 12 मिनट या 15 मिनट, यानी 15 मिनट में एक वीडियो, यानी 4 वीडियो में निपट जाएगा। उसमें थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बताऊंगा तो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप देख सकते हैं कितना टाइम हो रहा है, झूठ नहीं बोलेंगे 4:30 होने जा रहा है। ठीक है, तो
ये तो हमारा आदत है डेली का जागने का, बट आज टीम ने हमारे स्टडी पॉइंट स्टडी सेंटर के जितने टीचर्स हैं और बच्चों के कहने पे मैं बोला चलो ठीक है रखते हैं। तो कल रात से ही लगे हुए हैं, आज पूरा दिन इसी में चला गया एनालिसिस में। एनालिसिस करने के बाद भी हमें ये श्योरिटी नहीं थी कि हम अच्छा दे पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पहले से पड़े हुए हैं। बट अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे कि भाई गलती हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, ओके, बोलते बोलते मैं थक गया। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।